life inspires you in a role, inspires you in what? Anything can inspire one, but and maybe someone that might have inspired you. So that's a different thing that you have to do. Excellence inspires me. People inspire me. Many people have inspired me. My father, Kafka Azmi, who is a writer, is somebody who has inspired me. Shyam Benegal, the director, has inspired me a lot. Of the women with whom I work in the slums inspire me. So it's a very broad question. Yes, ma'am, I get that. But surely you are an inspiration to me. Thank you. Just one more question, like, how do you feel about an award that is made for the writers and by the writers? Well, I'm extremely happy because as an actor, I realize that it is the writer to who I owe my performance. I mean, definitely in film, the director is the captain of the ship. In the theatre, they say the actor is the captain of the ship, and in television it's writer. But for me, coming from a writer's family, for me the most important thing is the script. And I think this is a very important award because it is given by your peer group. And to me, there is no better tribute that can be paid to you except that your peer group admire what you do. And I owe everything to the writer, having coming from the daughter of a writer, the wife of a writer, the daughter-in-law of a writer. What more can I say? I can't hear anything she's saying. I'm asking that the writers who credit नहीं दिया जाता है, writing करके credit नहीं दिया जाता है, उसके ऊपर आपने कोई award possibly recognize writer? मैम, शी इज आस्किंग कि राइटर्स को बहुत बार क्रेडिट्स नहीं दिया जाता. कब ऐसा होता है? ऐसा कभी नहीं होता. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि राइटर को अवार्ड, राइटर को क्रेडिट नहीं देना. मतलब मेरे लिए तो इट्स द मोस्ट blasphemous thing that you can do because it's the writer who creates. It's the writer who creates. If there is any performance of mine that you have liked, it is because the character that has been written for me by the writer is the one that gives me a chance to inhabit her world in a way that it relates to the audience. सबसे पहली बात तो ये है कि राइटर्स को जो अहमियत दी जानी चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं दी जाती. जो अवार्ड फंक्शंस होते हैं वहाँ पे जब राइटर को बुलाया जाता है तो ऐसे बुलाया जाता है जैसे कि एक जो है थर्ड कैटेगरी का अवार्ड दिया जा रहा है. तो ऐसे में और कौन लोग चुनते हैं, कैसे चुना जाता है वो अवार्ड, और कितना जो है उसमें करप्शन है, कितने इन्फ्लुएंसेस काम करते हैं, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के अपने प्रेशर्स होते हैं. तो होता ये था कि जो मेरिट बेस्ड होना चाहिए वो अवार्ड होता नहीं. तो इसलिए SWF ने सोचा कि ऐसा अवार्ड जो राइटर्स जो है खुद ही तय करें अपने कलीग्स और टोटली मेरिट बेस्ड अवार्ड, जिसमें ये क्योंकि क्या है अवार्ड देने का ज़रूरत क्यों पड़ती है. अवार्ड्स किस लिए दी जाती है? इसलिए दी जाती है वो पैरामीटर्स बनना है कि अच्छा काम क्या होगा, और वो पैरामीटर्स तय करने के लिए ज़रूरी है कि वो अवार्ड्स मेरिट बेस्ड हैं या नहीं. और इसलिए ये पहल जो है, ये इनिशिएटिव जो है वो ज़रूरी भी था. और जाहिर है कि एक हम सब राइटर्स के बहुत अच्छी बात है. और एक मैं बात और बताऊँ कि जो राइटर्स को आप प्रोत्साहन देने की कोशिश करेंगे तो उससे थोड़ी क्वालिटी अच्छी है. Sir, more on that, any advice that आप देना चाहेंगे? अरे यार मैं क्या एडवाइस दूँ, लेकिन ये है कि यही है कि अभी वो सब्जेक्ट जो सोशली रेलेवेंट हों, वो सब्जेक्ट जो
काफ़ी हद तक हो। So one last question. बाकी members के लिए one feeling that you would like to put out. Oh my, I myself am a member. I feel very thrilled about it. Very, very. And my best. Thank you so much. It's the writing bit. Regardless of what the circumstances are, if you are writing, regardless of how bad it is, regardless of how good it is, making it good is what the process is, and once it never ends, and you just submit it, and then what shape or form it takes, and it's just our job is done. So SWA ने कैसे impact किया इंडस्ट्री को by creating an award that is for the writers, by the writers, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? So I was a software engineer for 6 years before I joined the film industry and took हेलो हाँ यहाँ मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए आप कह रहे हैं आने तो क्या आने ओके आपको कैसा लग रहा है कभी अवार्ड दैट इज मेड फॉर द राइटर? अच्छी बात है। देखिए दूसरे लोग आपको अप्रिशिएट करें वो भी कुछ की बात है, लेकिन जो आपके अपने जो पीयर्स हैं, आपके कलीग्स हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके वोकेशन में हैं, सेम प्रोफेशन में हैं, वो आपको अप्रिशिएट करें, आपको अवार्ड दें, तो उसकी इज्जत कुछ और ही है। बहुत खुशी की बात है जिन लोगों को मिल रहा है। मैं अभी से उन्हें कॉन्फ्रेंस कर देता हूँ। आप अपने राइटिंग रिचुअल के बारे में थोड़ा कुछ बता सकते हैं? अरे क्या उसमें बताने का क्या है, और अभी भी कर रहा हूँ। मैंने तो स्क्रिप्ट कोई 12-14 साल से लिखी नहीं थी। अब ये पेंडेमिक में 3 स्क्रिप्ट लिख डाली, तो अब दे रहा हूँ दूसरों को। और यहाँ तक अपने काम के बारे में खुद बात करने का कोई मतलब नहीं, वो दूसरे डिसाइड करेंगे ठीक है कि नहीं, या दूसरों ही ने डिसाइड किया है तो ठीक था कि नहीं था। आप क्या एडवाइस देंगे अपकमिंग स्टूडेंट स्क्रीन राइटर को, बर्डिंग स्क्रीन राइटर? पढ़ो जितना हो सके। आप अगर स्क्रीन प्ले राइटर बनना चाहते हैं, जितना फिक्शन हो सके आप पढ़िए, और फिक्शन हर तरह का पढ़िए। क्लासिकल भी पढ़िए और बेस्टसेलर भी पढ़िए, और जो पेपर बैक नॉवेल्स होते हैं जो कि आपको स्टेशन पर मिलते हैं वो भी पढ़िए, थ्रिलर भी पढ़िए, और सीरियस बुक भी पढ़िए, दोनों पढ़िए। ज़्यादा लिटरेचर सीरियस पढ़ने से आप ड्राई हो सकते हैं, और सिर्फ अगर आप लाइट लिटरेचर पढ़ेंगे तो आप फ्लिपेंट हो सकते हैं। तो दोनों पढ़िए, जितना इनटेक चाहिए ना आउटपुट से पहले। हम लोग एक ये नहीं होना चाहिए जैसे कहते हैं इनब्रीडिंग। डोंट लर्न फिल्म राइटिंग ओनली बाई वॉचिंग फिल्म। योर सोर्सेज शुड बी डिफरेंट, ओनली देन यू विल बी एबल टू ब्रिंग न्यू थिंग। दैट्स व्हाट आई से। हो गया काफ़ी है, इससे आगे क्या मैं एक नहीं बहुत है। देयर आर ग्रेट राइटर। आर यू टॉकिंग ऑफ नॉवलिस्ट, यू आर टॉकिंग ऑफ स्क्रीन प्ले राइटर, यू आर टॉकिंग ऑफ शॉर्ट स्टोरी राइटर, यू आर राइटिंग ऑफ पोएट। जी मेरा मोटिवेशन कुछ फिल्में थी लेकिन लिटरेचर भी था। व्हेन आई वाज यंग आई वाज अ विरोशियस रीडर, बहुत पढ़ता था मैं। तो आई वाज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ राइटर्स लाइक से कृष्णचंद्र, शरद बाबू, रण सिंह बेदी, द ग्रेट राइटर। तो एक तरफ इन लोगों को पढ़ता था, दूसरी तरफ जैसे फिल्म थी 2 बीघा ज़मीन, साहब बीबी गुलाम, B.R. चोपड़ा की फिल्म थी कानून, अख्तर उल ईमान के डायलॉग, या इस तरह के बहुत अच्छे बड़े बड़े डायलॉग राइटर पैदा हुए थे। बेदी साहब बहुत अच्छे डायलॉग राइटर, रण सिंह बेदी। मेरा फेवरेट राइटर एक कोई नहीं रहा, बहुत सारे राइटर मैंने अप्रिशिएट किए, लेकिन अगर मुझे किसी का नाम लेना ही होगा तो मैं कृष्णचंद्र, आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ कृष्णचंद्र। ही वॉज अ उर्दू राइटर, उनकी किताबें हिंदी में भी अवेलेबल हैं और बहुत कमाल करते हैं। थैंक यू सो मच।
बिल्कुल पसंद नहीं है। कविता वाले हो ये हैं, आप इनसे पूछें कि मैं बड़ी प्रोज वाली हूँ। जी आपसे थोड़ी पंक्तियाँ सुनाने लाइक सब मैं ये कहूँगा कि ये बहुत अच्छा है, क्योंकि लेखक जो होता है वो किसी भी फिल्म की आत्मा होता है। तो शरीर कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, अगर उसमें आत्मा नहीं है तो उसे मृत माना जाता है। और मृत शरीर का या तो उसको दफन कर दिया जाता है या उसको दहन कर दिया जाता है। तो आप आत्मा को सेलिब्रेट कर रहे हैं और राइटर्स एसोसिएशन की बात है। तो मुझे लगता है कि अब ये कहीं ना कहीं आपने जो प्राण होते हैं लेखन उसकी दिशा में उसको पुरस्कृत और पुरस्कृत करने की दिशा में प्रयास किया। तो ये बहुत अच्छा आनंद का विषय है। और साथ में ये आनंद का विषय है कि रेणुका जी अभिनेत्री के तौर पे हम इनसे मिले थे, लेकिन ये राइटर भी हैं, ये डायरेक्टर भी हैं और अपनी पहली फिल्म में इनको 5 नॉमिनेशन मिले थे। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। Just one last question. Any advice upcoming writers के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो निराकार को साकार कर दे वही कलाकार है। तो हमारे जितने भी भाव होते हैं वो सब निराकार होते हैं। अगर आप प्रेम की बात कर रहे हैं तो प्रेम आप अगर कोई कहे कि कैसा होता है तो आप उससे ये कहेंगे कि मैं आपको एक्सपीरियंस करा सकता हूँ लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकता। आप किसी से नफरत की बात करें तो आप कहेंगे कि एक्सपीरियंस करा सकते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो जो जितने भी भाव होते हैं वो निराकार होते हैं, उनको साकार करने का जो हुनर होता है वो लेखकों के अंदर होता है और वही कलाकार होते हैं। तो मैं लेखकों से सिर्फ यही कहूँगा कि भाव भाषा इनके बीच में अगर आपका अमृत योग हो जाए, इनके बीच में अगर आपकी अच्छी जुगलबंदी हो जाए तो फिर आप ये मान के चलिए, क्योंकि अभिनेता तो विस्मृत किए जा सकते हैं लेकिन जो लेखक होते हैं वो सदैव स्मृति में बने रहते हैं। Thank you so much, sir. मैं सुन सकता हूँ लुक कहाँ देना इसमें अच्छा ऑफकोर्स SWA अवार्ड्स बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि हमारी अपनी बिरादरी, हमारे अपने राइटर्स, हमारे अपने कलम नवाज को जब नवाजते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि राइटर्स जब एक दूसरे राइटर्स को पसंद करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उनको अवार्ड देते हैं, वो मुझे लगता है सबसे बड़ा अवार्ड होता है। क्योंकि जानकार लोग जो लेखनी को जानते हैं, जो स्क्रिप्टिंग को जानते हैं, जो स्क्रिप्टिंग के क्राफ्ट को जानते हैं, वो ये अवार्ड दे रहे हैं तो उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। सो इट हैज़ सर्टन काइंड ऑफ वैलिडिटी। सो क्राफ्ट को जानने वाला आदमी दूसरे क्राफ्ट को जानने वाला इंसान को जब नवाजता है तो बहुत बहुत बड़ी घटना है। तो आई सिंसियरली विश ऑल द नॉमिनीज एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड ग्रेट वर्क SWA इज़ डूइंग ग्रेट वर्क। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरह उनको ईश्वर शक्ति देते रहे SWA को। थैंक यू वेरी मच। आपके फेवरेट राइटर कौन है? मेरे फेवरेट राइटर मेरे अलावा मुझे विजय आनंद बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे कितने राइटर्स हैं, मतलब मुझे सुल्तानपुरी बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे शाहिर साहब अच्छे लगते हैं, मुझे आनंद बख्शी बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे अबरार अलवी, विजय आनंद, ये सब राइटर्स ने मुझे बड़ा इम्प्रेस किया। कभी कभी गुलजार साहब भी इम्प्रेस कर देते हैं, करते रहते हैं अभी भी। ब्रजेंद्र गौर ने मुझे इम्प्रेस किया और साहित्य में प्रेमचंद वगैरह तो है ही। शरद जोशी ने बहुत इम्प्रेस किया। शरद जोशी ने फिल्में लिखी, उसने भी काफ़ी इम्प्रेस किया। और नए राइटरों में मतलब 70s के बाद में जो नई सिनेमा जो बनी उसमें विजय तेंदुलकर ने काफ़ी इम्प्रेस किया। तो ये सारे राइटर्स मुझे अच्छे लगते हैं। मेरा फेवरेट डायलॉग मेरा वाला या किसी का भी? मेरा वाला तो सबसे फेवरेट डायलॉग मुझे मेरा वही है जो यस बॉस फिल्म में था कि दो कमज़ोर इंसान एक कामयाब ज़िंदगी कभी नहीं बना सकते। थैंक यू। नॉमिनेट हुई थी स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग के लिए और कहानी और पटकथा के लिए अवार्ड मिला डेब्यू का। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप किसी भी उम्र में डेब्यू कर सकते हैं। ये एक्चुअली सभी के लिए एक मेरे ख्याल से प्रेरणा है कि इट्स नेवर टू लेट। कुछ भी अगर नया शुरू भी करना है तो उसकी कोई उम्र नहीं होती। सो
क्योंकि इस त्रिभंग की पटकथा पे मैंने बहुत साल काम किया, कुछ 6 साल काम किया। उसके बाद वो वैसी हुई जैसे आपने फिल्म में देखी। सो आई एम जस्ट so happy. Anything you would like to say to the SWA committee and the organization? मुझे ऑफ कोर्स SWA की जूरी को बहुत धन्यवाद देना है, क्योंकि उन्होंने मेरा चयन किया एज अ विनर ऑफ बेस्ट स्टोरी एंड बेस्ट स्क्रीन प्ले। और बेसिकली SWA अवार्ड्स का भी तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि इतना काम रहता है ये अवार्ड्स, इस पर्टिकुलर अवार्ड के पीछे सारे कैटेगरीज, टेलीविज़न के ख़ास तौर से म्यूज़िक, ये सारी कैटेगरीज बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो हर साल ये प्रयास करते हैं कि राइटर्स को उनके जो भी मेहनत है उसका फल मिले। सो उनका सच में बहुत शुक्रिया। और सिद्धार्थ मल्होत्रा जो मेरे प्रोड्यूसर हैं त्रिभंग के, मुझे लगता है कि उनके बिना त्रिभंग किसी को देखने को नहीं मिलती, तो ख़ास तौर से मैं उनका जिक्र करना चाहती हूँ, टू थैंक हिम रियली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर दिस। Thank you so much, ma'am. Congratulations. Thank you so much. बेसिकली कैन यू हियर माय साइड? ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये अवार्ड बेसिकली बेस्ट लिरिसिस्ट ऑफ द मूवी के लिए मुझे मिला हुआ है। मेरा फौजी कॉलिंग ये शकील साहब, शकील आज़मी जी को मिला है, राइट। एंड मैं उस फिल्म का डायरेक्टर हूँ, राइटर डायरेक्टर, और ये उनके पुत्र हैं, राइट, शकील भाई के। तो ये जो अवार्ड लेने आए हैं, तो मैं चाहूँगा पहले ये कुछ बोलें और फिर मैं बोलूँगा, प्लीज़। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ ये इस अवार्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं उनका, SAW का, और बाकी तमाम मेंबर का, और हमारे डायरेक्टर साहब आर्यन सर, थैंक यू। बहुत कम शब्दों में बातें ख़त्म कर दी। तो इसके लिए शकील भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं इस जो सॉन्ग जो इसके लिए हमको मिला है उसका टाइटल, मतलब सिग्नेचर लाइन है, सपनों का जहान है पापा, मेरा आसमान है पापा। तो जब मेरा फौजी कॉलिंग मैं लिख रहा था, तो मुझे एक ऐसे राइटर की ज़रूरत थी जो मेरे अंदर के थॉट को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके थ्रू सॉन्ग के वे। तो शकील भाई को मैंने मेरे पास बुलाया था, और सबसे बात ये थी कि शकील भाई ने ये गाना सिर्फ 2 घंटे में लिखा था। क्या बात। मैं ऑफिस में ही था और मैं बाकी के हमारे प्रेप चल रहा था, प्री प्रोडक्शन चल रहा था। तो मैंने शकील भाई को बोला कि बाबा, तो शकील भाई ने मुझे एक साइन लाइन दी, मैंने कहा अच्छी है, और फिर उन्होंने अंतरे बनाने शुरू किए। उन्होंने इस गाने लिखने के दौरान उन्होंने 3 चाय पी, सिर्फ 3 चाय पी, और 3 चाय लिखने के बाद एक इतना मीठा गाना बना दिया, इतना मीठा गाना, मुझे लगता है ये ताउम्र बचता रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा सॉन्ग है जो अभी एक बेटी की तरफ से एक बाप को डेडिकेट हुआ है। अभी तक फिल्म आपने जितने गाने सुने वो सब माँ को डेडिकेटेड है, राइट। माँ, इसमें कोई शक नहीं, माँ तो माँ है, उसकी तुलना क्या की जाए, बट फादर की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, एक पिता की अहमियत क्या है। तो इस गाने के ज़रिए आपको पिता की अहमियत का पता चलेगा, और शकील भाई ने बहुत ही खूबसूरती से इस गाने में पिता की अहमियत को, उसकी प्यार को, उसके बलिदान को बहुत अच्छे से उतारा है। उस अंतरी कुछ लाइनें मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें एक अंतरी की लाइन है, मैं रोऊं तो मुझे हंसा के खुशियों से भर देते हैं, मेरे आंसू हाथ में लेके पापा जुगनू कर देते हैं, रहते हैं नींदों में छुपके पापा मुझ में सोते हैं, मैं भी नहीं होती हूँ फिर भी पापा मुझ में होते हैं, पापा जैसा कोई नहीं है, नहीं है वैसा कोई नहीं है, खुशियों का जहान है पापा, मेरा आसमान है पापा, मेरा आसमान है पापा। तो शकील भाई, थैंक यू सो मच। एंड ये सॉन्ग, ये अवार्ड एक्चुअली मैं मेरे पापा को डेडिकेट करता हूँ, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, और वो लास्ट ईयर वो एक्सपायर हो गए। तो पापा, ये अवार्ड आपके लिए है। एंड थैंक यू शकील भाई, आपने इतना प्यारा गाना लिखा। मालूम नहीं था पापा इतनी जल्दी चले जाएंगे, बिकॉज ही वॉज वेल, बट ठीक है, जो ईश्वर की मर्जी। एंड आई एम सो हैप्पी, थैंक यू इसकी राइटर एसोसिएशन, जिन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, एंड हमारे गाने को उन्होंने सेलेक्ट किया। थैंक यू सो मच अंजुम रजावली जी, एंड ये सब गेस्ट जो है जावेद साहब, जिन्होंने अपने हाथों से ये अवार्ड हमको दिया है। तो नो डाउट ये पल मेरी ज़िंदगी के लिए यादगार पल है, क्योंकि ये मेरी डेब्यू फिल्म थी, और डेब्यू फिल्म में जावेद साहब के ज़रिए मुझे अवार्ड मिला। इसके लिए थैंक यू सो मच शकील भाई।
क्योंकि उन एक्चुअली हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मतलब एटलीस्ट एक तो कर रहे थे लेकिन दो तो बिल्कुल नहीं करते हम लोग। स्पेशली डायलॉग राइटर्स हम दोनों हैं नहीं, तो हम लोगों को वो था कि कहानी जैसे मूव करती है, जितने मिनिमम डायलॉग सही होते हैं हमने उतना लिखा। कुछ ऐसा नहीं था कि ये डायलॉग लिख देंगे कल को टी शर्ट पे छप जाएगा, वो वैसा कुछ मोटिव नहीं था। तो उसके लिए तो मतलब SWA को हम थैंक यू करना चाहेंगे कि हमें आज पता चला कि हम लोग डायलॉग राइटर्स भी हैं, तो थैंक्स अ लॉट। सर आप SWA कमेटी को कुछ बोलना चाहेंगे? SWA कमेटी को यार मतलब उनको ऐसे अवार्ड फंक्शन करते रहना चाहिए, वो जो वर्कशॉप्स करते हैं वो करते रहना चाहिए, क्योंकि जेन्युइनली एक राइटर काफ़ी इनसिक्योर होता है, उसकी रीच काफ़ी कम होती है, मतलब लेटर में सबसे नीचे आता है, सबसे पहले काम करता है, तो वो एक होप चाहिए होता है एक राइटर को जो SWA की वजह से मिलता है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट SWA कीप डूइंग सो मच वर्क एंड ऑब्वियसली अवार्ड मिला है यहाँ पे, तो अभी बहुत ज़्यादा खुश है, अंदर से ब्रेथ भी बड़ी हुई है थोड़ी सी समझ में भी नहीं आ रहा क्या बोले, समझ में भी नहीं आ रहा, बट डेफिनेटली 2 अवार्ड नहीं सोचे थे, एक की थोड़ी सी होप थी कि शायद कुछ किया है तो एक मिलेगा, बट 2 सीरियसली यस सो है। Congratulations once again, sir. Thank थैंक यू सो Good evening, sir. Welcome to the SWA Awards. आपको कैसा लग रहा है coming to a ceremony for the writers, by the writers? आई थिंक इट्स ए ग्रेट फीलिंग फॉर मी, और मुझे लगता है कि फिल्म का जो असली जो रीढ़ की हड्डी है वो राइटर होता है, और स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन अब इतनी एक्टिव हो गई है, स्ट्रॉन्ग हो गई है, और आई थिंक आफ्टर पैंडेमिक हम पहली बार ये इन पर्सन कर रहे हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। और अंजुम एंड रोबिंदा इन सबकी मेहनत और पूरी एसोसिएशन की मेहनत, आई एम वेरी एक्साइटेड दैट। And sir, like, what are some of your favorite writers that you would love to see recognized? बहुत राइटर हैं, मतलब एक के बारे में तो मैं नहीं बोल सकता, पर मेरे बहुत फेवरेट राइटर्स हैं, एंड लेट्स सी कि किस किस को क्या मिलने वाला है, क्या क्या अवार्ड मिलने वाले हैं, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। What advice would you give to a upcoming budding screenwriter, like a student who's just coming out of college? Start writing, because you have to keep writing. Writing is more about rewriting, और जो राइटिंग में सबसे बड़ा जो ट्रैप मेरे लिए होता है, और जो आई थिंक मोस्टली सब स्क्रीन राइटर्स के लिए होता है, वो ये होता है कि आप जब दूसरे का काम पढ़ते हैं तो आपकी ऑब्जेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, आप उसमें वो कमियां ढूंढ लेते हैं, पर जब आप खुद लिखते हैं तो आप वही कमियां दोहराते हैं। तो ये जो एक ऑब्जेक्टिविटी अचीव करना और अपने काम को एक क्रिटिक की नज़र से देखना, और या दोस्तों को देना जो कि उसको क्रिटिसाइज़ करें, और उसको आप कितना ओपन है, यू हैव टू बी वेरी वेरी ओपन, यू हैव टू बी, देन ओनली यू कैन इवॉल्व इन राइटिंग, एंड इट्स द मोस्ट dubious, most difficult part of filmmaking. Writing makes or breaks. You can never make a bad film out of good script, but you can definitely make a bad film, good film. You cannot make a good film out of the bad script. Thank you so much. Thank you. We hope you We're exhilarated but also in shock. We were up against some pretty good work and we were not expecting this at all. anyone who you would like to thank in particular this award ke liye? Like I said, our producers Smriti and Bobby, Anuja, whose work I now believe that it has been acknowledged that we have remained faithful to the spirit of her book, and that's a really big compliment, because it's in an adaptation, that's one more thing to worry about, not betraying the material that you start out with. So thank you to her, thank you Habib, and thank you to our friends and family. It's been a very difficult time writing this show, and they have been amazing. And more than that, also want to thank the audience for receiving it the way that they did. And honestly, I'm really glad that we got the award, not just for us, but that, yes, like light-hearted material that is getting made and in the OTT space. It's really nice, and it's really nice to be accepted and not just dramatic works. I like the light-hearted material. Anything you'd like to say to the SWA committee, the organizers?
I would honestly thank the SWA for this entire venture. It is, as writers, you're mostly sitting alone in your room and doing the work, and it feels really good to be reminded that even though you're sitting alone, you've not been forgotten. So that's like a really, really good thing that SWA is doing. The SWA has always made space for new writers to tell their stories, and it seems like there has never been a better time to be a screenwriter, and I feel it right now in my bones, and I'm so grateful to be here, and thank you. Congratulations. Thanks very much. This is amazing. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट मुझे लगता है पहले बता देना चाहिए क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट के साथ में इट्स सो डिफिकल्ट टू बी ऑन द स्टेज एंड बी एक्सपेक्टेड टू स्पीक समथिंग बट इट्स एक्साइटिंग इट्स रियली रियली सेटिस्फाइंग इफ़ आई मे यूज़ दैट वर्ड। बड़ी खुशी होती है, बड़ी मेहनत से काम करते हैं, जब अप्रिसिएशन मिलता है और अपने लोगों से मिलता है, इट फील्स रियली रियली रियली। आपने जब स्टार्ट किया था लिखना, आपको लगा था कि SWA की तरफ से आपको ये अवार्ड मिलेगा या फिर ऐसे कोई एक्सपेक्टेशन? एक तो ये शो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा लिखने के लिए। इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, एक बेहद सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर में बना हुआ है और सबके लिए स्ट्रगल यही था कि इसको एक बहुत थिन लाइन है कि ये चीप ना लगे, ये सही कैसे दिखाएं, तो उसके ऊपर में करते 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 काम आई थिंक वी बीन एबल टू रीच मैनी पीपल इवन द वे द शो वाज रिसीव्ड it was really amazing that people were thanking us for making a show like this. तो फीडबैक बहुत अच्छा रहा और उसकी खुशी बहुत लगी, बहुत क्योंकि अपने रूम में बैठ के अपने लैपटॉप पे कहानी कह देना बहुत आसान होता है, पर वो कहानी और लोगों तक पहुँचे और वो भी उसी तरीके से समझ पाए, that's satisfying. That's what we worked for. So it was really good. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. ऐसी recognition मिलेगी? I can speak for myself. I was confident this is special and this will get recognized. Rehan is a very special story. जब लिख रहे होते हैं तब तो ये बहुत दूर की बात होती है, उससे पहले होता है कि पहले तो बने, और बनने का प्रोसेस एक ऐसा होता है कि उसमें बहुत सारी केमिस्ट्री होती है, वो सारी केमिस्ट्री, सारे फार्मूले एक साथ ठीक बैठें, सबका अच्छे काम हो, फिर स्क्रीन पे जब आप देखते हैं, हाँ जब हमने इसको स्क्रीन पे देखा उसके बाद से भी ये कि हाँ बहुत अच्छा शो बना है, ये नहीं पता था कि इसके लिए कोई अवार्ड मिलेगा या क्या होगा, बट या एक अच्छा शो बनाया, ये सोच के अपने आप में वो एक अवार्ड। Sir, what would you like to say to the SWA committee? कुछ भी बहुत ही सराहनीय ये कदम है लेखकों के द्वारा, लेखकों के लिए इस तरह का जब ये एक इनिशिएटिव है, और इसमें और कोई मानदंड फिर होगा नहीं, क्योंकि कहीं पे ग्लैमर है या कोई, ये सिर्फ लेखकों के लिए है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही प्योर काइंड ऑफ अवार्ड है और हमें इसलिए और ज़्यादा खुशी है। बिल्कुल मैं शालीन की बात से सहमत हूँ कि चौथा ऐसा अवार्ड है जिसमें लेखन के दम पर जिस तरह से पेपर पे पहले जिस तरह से उतर के आते हैं, शो बन के आता है, फिल्म बन के आती है, टीवी जो बन के आता है, वो उसके दम पर चुना जाता है और नॉमिनेशन के स्तर पर ही सबसे पहले तो वो जो पैमाना होता है वही अपने आप में बहुत खरा होता है, तो सिर्फ नॉमिनेट होना ही बहुत ख़ास है। और दूसरा ये भी कि इससे मुझे लगता है कि नए लेखकों को जो अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको भी बहुत प्रोत्साहन मिलेगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग अपने आप में एक